Good morning, dear students. So today I am going to start 3.2 exercise question third. So in question third, two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 1:5. So find all the angles of the parallelogram. Okay, one parallelogram is given and adjacent angles are given in the ratio. Then you have to find out all the angles. So suppose now question third. This is a parallelogram A, B, C, D. Suppose these are angles, adjacent angles. You can take these also. Choice is yours. Suppose I have taken these angles. So 1:5. 1:5. So you can let these angles with x. So 1x means x and this is 5x. Okay. Then you need to find out here these angles also. First of all, find the value of x. Now students, let A, B, C, D is a parallelogram where A:B is equal to 1:5. So angle A is x and angle B is 5x. Okay. Now we know that sum of the adjacent angles of the parallelogram, sum of the adjacent angles of a parallelogram is 180 degree. So these properties you have to keep in your mind, then you can solve out the questions. So adjacent angle का सम कितना होता है 180 degree. So angle A plus B is 180 degree. X plus 5x is 180. 6x is 180. तो x कितना आ गया यहाँ से 180/6. So hence the value of x is 30 degree. ठीक है. Now angle A is equal to x equal to 30 degree. Angle B is equal to 5x. 5 into 30, that is 150 degree. Now question is that find all the angles. All angles means angle C equal to angle A. Angle A is 30 degree and angle D equal to angle B, it is 150 degree. इसमें आप रीजन क्या लिखोगे? That opposite angles of a parallelogram. ठीक है. ये क्या है आपके पास? रीजन क्या आ जाएगा? Opposite angles of a parallelogram are equal. So hence all the angles we have measured here, we have calculated. Okay. In this way, अगर रेशो में गिवन है तो आपको क्या मानना है? वहाँ से एंगल्स, यहाँ से आपने x के साथ मान लिया. Then use the property. What is property is used in that particular question? You can use that. Okay. Now let's move to the fourth question. In question fourth, this is REST. ये एक नेम गिवन है आपको, कंप्लीट नेम REST. ऐसे एक नेम है पैरेललोग्राम का. ये है वो पैरेललोग्राम. यहाँ से बस इसका सिंबल बनाया हुआ है. एग्जैक्ट फिगर ये है इसकी. आपको क्या करना है? यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है. दिस इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है. आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो आपको x और y की, तो आपको क्या करना? प्रॉपर्टीज. व्हाट प्रॉपर्टी यू कैन यूज हियर? आप देखो यहाँ पर क्या दी हुई है? वैल्यूज. साइड्स गिवन है ना, साइड्स गिवन है. तो आप क्या करोगे? यहाँ से वी नो दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो आप वहाँ से ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो. ओके. नाउ फोर्थ क्वेश्चन.
in the figure REST is a parallelogram. So we know that, आप यहाँ से क्या बोल रहे हो, we know that opposite sides of a parallelogram are equal. So in this also RE किसके इक्वल होगा, TS, एंड यहाँ से क्या बनेगा, RT इक्वल टू ES. What is the value of RE here? 3x plus 2 and TS is 23. So these values are given. RE, TS अगर हमें प्रॉपर्टीज पता है then easily we can find out the solution. देखो यहाँ से आपको अगर साइड्स के रिगार्डिंग आपको प्रॉपर्टी लर्न थी, याद थी, तो आप डायरेक्टली यहाँ से आप इसको सोल्व आउट कर सकते हो. नाउ RT is 2y minus 1 and ES 15. Now you can solve out this. 3x is equal to 23 minus 2. 3x is equal to 21. So x is equal to 21 by 3. So hence value of x is 7. Now यहाँ से आप y की वैल्यू निकालो. ये माइनस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस. So 2y is equal to 16. y equal to 16 by 2. So y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 8. So hence x equal to 7 and y equal to 8. So these are the values. Okay, हमने बस प्रॉपर्टीज़ को ही यहाँ पर उनका प्रॉपर्टी का यूज़ किया है. देन we find out its solution. Now similarly in fifth question, RACE, it is a parallelogram. जो ये आपकी लेंथ गिवन है, ये सेंटीमीटर में गिवन है. यहाँ से क्या गिवन है, OC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. AE जो ये लेंथ है मीन्स डायगोनल्स का यूज़ होगा यहाँ पर. AE इज़ 10 सेंटीमीटर मोर देन RC. RC जितना होगा 10, AE कितना होगा उससे 10 सेंटीमीटर ज़्यादा. देन वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ OA. ओके, सो देखते हैं कि हम कौन सी प्रॉपर्टी डायगोनल्स के रिगार्डिंग हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5th, RACE इज अ पैरेललोग्राम वेयर OC इज 6 सेंटीमीटर. पहले आप ये लिखो, वेयर AE एंड RC आर डायगोनल्स विद OA we have to find out OC 6 सेंटीमीटर एंड वो हम AE की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से. AE की वैल्यू क्या गिवन है हमें, AE इज़ 10 सेंटीमीटर मोर देन RC. तो आप यहाँ से पहले RC निकालो. RC क्या निकलेगी टोटल. नाउ स्टूडेंट्स, आपको पता है डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. वो बाइसेक्ट करते हैं, तो बाइसेक्ट करते हैं तो RC क्या हो जाएगा, RO प्लस OC. RO और OC की दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, इक्वल. बाइसेक्ट का मतलब है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो जितनी OR होगी उतनी ही OC होगी. ये 6 है तो ये भी 6 होगी. तो टोटल कितनी बन जाएगी, ये 12. ओके, ये बात आपको अपने ध्यान में रखनी है, अपने माइंड में रखनी है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के, जितनी OC है उतनी ही OR होगी. बाइसेक्ट का मतलब ये होता है. नाउ वी नो दैट
डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, OC इक्वल टू OR इक्वल टू OC, और ये कितना है 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से क्या इम्प्लाइज कर सकते हैं कि RC की वैल्यू क्या होगी, ट्वाइस ऑफ OC, 2 × 6 दैट इज़ 12 सेंटीमीटर। तो RC कितना निकल गया हमारे पास, 12 सेंटीमीटर। अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो अब उसने क्या पूछा था, क्या बोला था, देन AE इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर मोर देन RC। तो RC कितना है 12 और उसमें 10 ज़्यादा, तो कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। अब इसने क्या पूछा है हमें, OA। हमारे पास AE की वैल्यू कितनी आ गई, 22 सेंटीमीटर। AE की वैल्यू कितनी आ गई, 22 सेंटीमीटर। तो OA कितना निकलेगा, OA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AE, हाफ ही तो निकलेगा ना, बाइसेक्ट निकलेगा यहाँ से। तो क्या आएगा 1/2 × 22 11। तो यहाँ से OA कितना आ गया हमारे पास 11 सेंटीमीटर। देखो ये डायगोनल अगर ये बाइसेक्ट करता है मीन्स ये इसका हाफ पार्ट हुआ ना, हाफ पार्ट हुआ। जब ये 6 था तो हमने ये क्या निकाला, टोटल 12। अब ये हमारे पास टोटल 22 है तो उसका हाफ ही तो बनेगा OA और OE, या OE पूछते आपसे या फिर AO पूछा हुआ है तो हमने वहाँ से इन दोनों की वैल्यू क्या निकलेगी, सेम। तो यहाँ से OA की वैल्यू कितनी निकल गई, 11 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स।